there is a mystery behind it. That's why the next Sunday after the Easter we will understand the mystery of the Holy Communion. If you understand it, मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. death has no authority over you. See, यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया. Jesus did not उसने नहीं bring कहा religion. चोर चोरी करने नाश करने आता है, मैं इसलिए लाया कि तुम ईसाई बन जाओ और बहुतायत में ईसाई बनो. He did not say that thief comes to steal, kill and destroy. I came to make you Christians and very religious. मैं इसलिए आया कि तुम्हारा नाम जॉन डेविड ये सब हो. नहीं. He didn't say I came to मैं make किस your लिए name आया John कि David. तुम क्या पाओ? जीवन पाओ. इसलिए I क्या came so you पाओ? have life. धर्म नहीं पाओ, Not जीवन पाओ. but life. वो जीवन देने के लिए आया He came और to give बहुतायत का जीवन देने के लिए आया. And he came to give life in abundance. ये हमें समझना है कि क्रूस की कथा कितनी महान है. We have to know how great the story of the cross is. Though I'll tell you, and then obviously अभी मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, अगले संडे में इसको और डीप में आपको ले जाऊंगा. मैं आपको सिखाऊंगा कि मांस और लहू का मतलब क्या है. I will take you deeper in the word in the coming Sunday to tell you what it means to have flesh and blood. मृत्यु आने का कारण क्या था? What was the reason for death to come? क्या था? अनाज्ञाकारी होकर उसने क्या खाया? फल खाया. They disobeyed and ate a fruit. आज अनंत जीवन हमारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि मैंने बहुत उपवास किया, मैंने बहुत दान पुण्य किया, मैंने बहुत कुछ किया. जैसे आदम ने अनाज्ञाकारी कर होके फल खाया और मृत्यु आई, हमने आज्ञाकारी होकर एक और फल को खाया और उस फल के खाने के कारण अब हम अनंत जीवन हमारा है. Eternal life does not come to you because you fasted or you prayed, but just as because of disobedience death came, we became obedient and we received this fruit of life. That's why we have eternal life. Amen. इसीलिए कई लोगों को ये समझ में नहीं आता. That's why some people don't मैं भी understand उनमें this. से एक था. I was one of them जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, when I did not know the Lord. मैं सोचता था अगर भगवानों की एक लिस्ट बनाई जाए I used to think if you make a list of all तो the यीशु deities, मसीह सबसे नीचे होंगे. मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ये बोलता था, then I used to say that Jesus would be the last of that list. हेल्पलेस डाइंग ऑन द क्रॉस. जिसको जो कुछ नहीं कर सका अपने लिए, इसको क्रूस पे मर गया बस. हाँ, अगर कोई अब आपको बोले कि अरे तुम्हारा यीशु तो मर गया, खुद को नहीं बचा सका. If someone tells you your Jesus died on the cross, he could not save himself. Take them to Hebrews 2:14. इब्रानी 2:14 पे ले जाना उनको. Okay? Take them to Hebrews 2:14. इब्रानी 2:14 पे ले What's in Hebrews 2:14? क्या लिखा है इब्रानी 2:14? इब्रानी 2:14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू में भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया. वो परमेश्वर जो एक आत्मा है, God who is a spirit, वो परमेश्वर जो बाइबल बताती है कि एक ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता उसकी उपस्थिति में. God who sits in such an unapproachable light that no one can enter into his presence. केवल मनुष्य ही नहीं, Not just man, वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत भी उसकी महिमा के तेज को झेल नहीं सकते. but the word tells us that even the angels cannot stand before the glory of that emanates from him. कभी दिन की कड़ाके की धूप में जब सूरज पूरा ऊपर हो, आप खुली आंख से देख सकते हो सूरज को. Can you look at the sun when it's right in the middle of the day? और वो सूरज की रोशनी तो 0 वॉट की रोशनी है परमेश्वर के आगे. And that sun is like a 0 watt bulb before God's light. So the light that emanates out of him, जो the प्रकाश power that emanates out of him, जो सामर्थ्य जो प्रकाश even उसमें the से निकलता है, angelic beings cannot contain it. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी उसको सह नहीं सकते. So वचन कहता है वो दोनों पंखों से अपनी आंखों को छुपा लेते हैं. The word says they hide their eyes with 2 wings. और 2 पंखों से अपने पांव को छुपा लेते हैं, And to show honor to him. With 2 they cover their feet to honor him. और 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं और परमेश्वर के सामने कह रहे हैं, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज हु इज एंड हु इज टू कम. होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज हु इज एंड हु इज टू कम. और वो 2 पंखों से उड़ते हुए कह रहे हैं, पवित्र 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 वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है. और वो परमेश्वर And that God जो मर नहीं सकता, who could not die,
मगर क्योंकि लड़के यानी उसके बच्चे मांस और लहू पहन कर आए, But because his children took part in flesh and blood, इंग्लिश में चिल्ड्रन ने हिंदी में लड़के कर दिया, पता नहीं क्यों, बच्चे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। because the children took part in flesh and blood, he himself likewise shared in the same. Hear this. सुनिए, यीशु मसीह जीसस केम टू अबॉलिश डेथ। यीशु मृत्यु का नाश करने के लिए आए। मेरे पीछे बोलो, यीशु मृत्यु का नाश करने के लिए आए। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो उस क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते। If you don't understand this, you cannot understand the story of the Jesus gospel. came to abolish death. यीशु मृत्यु को नाश करने के लिए But आए, as God, he cannot die. लेकिन परमेश्वर होते हुए वो मर नहीं सकते। So जैसे बच्चे मांस और लहू पहन कर आए, वो भी उनका सहभागी हो गया। So just as children put on flesh and blood, he also became partaker क्यों? with them. आगे पढ़ते हैं। Why? Let's read. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, उसे हरा दे। यीशु मरने के लिए आया ताकि मरने के द्वारा मृत्यु को नाश कर दे। Jesus came to die so that through death he will destroy death. So cross is not where Jesus died, cross is where death died, death was destroyed. So क्रूस वो जगह नहीं जहां पर यीशु मरे, क्रूस वो जगह है जहां पर मृत्यु मरी, उसने मृत्यु को नाश कर दिया। Oh hallelujah. Oh, he cannot die as God, so he became a man. क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए मर नहीं सकता था, इसलिए वो मनुष्य रूप धारण करके आया And he died for you and for me. और आपके और मेरे लिए मर And he गया, destroyed the power of death over you and over me. और आपके ऊपर से और मेरे ऊपर से मृत्यु की ताकत को नाश Oh कर दिया। hallelujah. अब Hallelujah. मृत्यु का आपके और मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Now death has no authority over you and me. Now death will not be our end, but it will be a beginning of a glorious eternity. अब मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, अब मृत्यु एक महिमा से भरे अनंत की शुरुआत है। अब जब आप अपनी उस बिस्तर में होगे आखिरी सांसों में, आप ये नहीं कहोगे हाय 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 उस पार क्या है, आपको पता है उस पार मेरा यीशु मेरे लिए खड़ा है। When you are in your last moment, taking those last breaths, you will not be afraid. You will know that my Jesus is waiting, expectant on the other side. Amen. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये धर्म के बारे में नहीं है। That's why I'm telling you, this is not about ये religion. ना तो धर्म के बारे में है, ना कर्म के बारे में है। This is neither about religion nor about works. ना मान सम्मान ना दान किसी के बारे में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में है। This is not about sacrifices or anything else. It's about what Jesus has done. उसका वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वे नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। His word says, all those that believed in His name, they will not perish. They will have eternal life. Amen. Amen. The more you understand the gospel, the bolder you will be. Oh, you'll have this assurance. Death has no hold over me. Death has no hold over my family. We are together in this side of the life. We shall be together on that side of the life because we belong to Jesus, the one who disarmed principalities, who destroyed death, and who said, I am one who was dead, but now I am alive forever. क्योंकि जब आप सुसमाचार को जानते हैं, आप साहसी होंगे, आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। आप जानते हैं आप एक परिवार इस तरफ भी है और उधर भी, उस यीशु के द्वारा जिसने ताकतों को हरा दिया, हमेशा के लिए नाश कर दिया। उसने कहा मैं मर गया था पर अब मैं जीवित हूं, हमेशा के लिए जीवित हूं। हालेलुया। अभी तक शैतान के पास चाबी थी दरवाजे की। इंसान मरता था, शैतान कहता था मेरे पास आ। Till now the devil had the keys to death. When man died, he took hold of it. And he used to put man, shut him और वो मनुष्य को बंद कर देता था in Hades. अधोलोक में।
He had the power over death. Hear this. उसके यहाँ पे क्या पास लिखा है? मृत्यु के ऊपर ताकत थी। That through death he might destroy him who had the power over death. That means before Jesus went on the cross, who had the power over death? The devil. कि मृत्यु के द्वारा वो उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी। शैतान के पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी क्रूस से पहले तक। बस हम एक बार फिर से स्क्रिप्चर को पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, उसे नाश कर दे, निकम्मा कर दे। जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी उसको नाश कर दे। He who had the power over So death to before the destroy. death of Jesus, यीशु की मृत्यु से पहले devil had the power over death. शैतान के पास ताकत थी मृत्यु के ऊपर। Oh hallelujah. This Friday is so good. ये फ्राइडे बहुत ही अच्छा है। This Friday is so good. ये फ्राइडे तो बहुत ही अच्छा है। This Friday is so good अरे ये फ्राइडे तो बहुत ही अच्छा because है, death was destroyed this Friday. क्योंकि मृत्यु नाश की गई इस फ्राइडे के दिन। Hallelujah. Amen. आमेन। अभी आपने कभी सोचा है Have you ever thought? फ्राइडे को in the morning 9 a.m. Jesus was crucified. सुबह 9 बजे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। अभी हमारे पास समय नहीं कि मैं आपको स्क्रिप्चर से ले चलूं, पर 9 बजे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, 12 बजे अंधेरा हो गया और 3 बजे उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। At 9 a.m. he was hung on the cross. At 12 it was dark, and at 3 he left his soul, spirit. संडे के दिन वो पुनरुत्थानित हुआ। On Sunday he was resurrected. और जब मरियम ने सोचा कि वो एक माली है, तो उसने कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी। तो मेरा सवाल ये है, फिर यीशु मसीह कहाँ था 3 दिन? And when Mary was about to touch him, he said, "Don't touch me. I have not yet gone to my Father." So my question is, where was Jesus for 3 days? If Jesus did not ascend to his father, अगर यीशु अपने पिता के पास नहीं where गए, was Jesus Friday night? Where was Jesus Saturday? Where was Jesus Sunday? तो शुक्रवार की रात को, शनिवार और सोमवार कहाँ थे यीशु मसीह? Oh hallelujah. Oh hallelujah. He went to destroy the one who had the power over death. वो उसको नाश करने गए थे जिसके पास मृत्यु की ताकत थी। Hallelujah. 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 Oh. See, we have to understand. हमें समझना It है was not just physical death कि सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं that Jesus abolished, जिसको यीशु ने नाश किया, but the spiritual death as well. लेकिन आत्मिक मृत्यु भी। So the spirits of men were kept in bondage. मनुष्यों की आत्माएं बंधन में रखी गई थी, बंधी रखी गई थी। और वो जो जेल की चाबी थी, And the key to that jail, अधोलोक के जो जेल की चाबी थी, वो किसके पास थी? the keys to किसके the पास jail थी? of Hades were शैतान के पास थी। with the devil. मगर एक गुड न्यूज है आपके और मेरे लिए। But we have a good news. Can you put Revelation 1:18? प्रकाशित वाक्य 1:18। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? तैयार हो? अगर आप क्रूस की कथा समझ गए तो मृत्यु का डर हट जाएगा आपके जीवन If you से। understand the gospel, the power of the cross, you will have no fear of death. मैं मर गया था। I was dead. Who is saying this? कौन कह रहा है? Almighty God. सर्वशक्तिमान Jesus. परमेश्वर, यीशु। मैं मर गया था I was dead. और अब देख And मैं behold, युगानुयुग जीवता हूँ। I am alive forevermore. Are you ready? तैयार है? और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास And I है। have the keys of Hades and death. Amen, amen, Amen. amen, hallelujah. Hallelujah. अब मृत्यु और अधलोक की चाबी किसके पास है? Who has the power of death and Hades now? सो अगर अधलोक की चाबी अब यीशु के पास है If the keys to Hades are और with यीशु Jesus, आपका प्रभु है and Jesus is और your वो Lord, यीशु मारा गया and that कि Jesus मृत्यु died, के द्वारा उसको हरा दे जिसको मृत्यु के ऊपर सामर्थ है। that He would destroy the one that had power over death through death. That means hear this. इसका मतलब सुनो, Hell is forever locked for you. नरक आपके लिए हमेशा के लिए बंद किया I जा चुका said है। hell is forever locked for you. मैंने कहा नरक आपके लिए हमेशा के लिए बंद किया गया है। Amen. If someone tells you go to hell, अगर आपसे कोई कहता है भाड़ में जाओ,
And I'm so sorry, that's not possible. बोला माफ करना पर मुमकिन नहीं है। That's not possible. बोलो संभव नहीं है। My Jesus went to hell on my behalf. मेरा यीशु नरक गया मेरे And लिए he has the keys of Hades and death. और उसके पास मृत्यु और And अधोलोक he की has चाबी है। shut the door of hell for his और family. उसने नरक का दरवाजा बंद कर दिया अपने परिवार के जो लिए। अब मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। He that is in Christ, there is no more condemnation over them. Hallelujah. Oh, मगर जो नाश हो रहे हैं But those that are perishing, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। for them the story of the cross is foolishness. मगर हम लोग But to us जिन्होंने उद्धार पाया that have received salvation, वो क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। that story of the cross is the power of God for us. Jesus utterly destroyed devil who had the power of death. यीशु ने शैतान को पूरी तरह से नाश कर दिया जिसके पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी। And he has shut the gates of Hades for his family. और उसने अपने परिवार के लिए अधोलोक के दरवाजे को लॉक कर दिया है। देख मैं मर गया था। Behold, I was dead. That's the mystery. ये रहस्य है। देख मैं मर गया था। Behold, I was dead. मुझे मरने की जरूरत नहीं थी, I did not have to die, पर मैंने तेरे लिए मृत्यु को चखा। but I tasted death for you. ध्यान से सुनो इस बात Hear carefully. को। यीशु ने मृत्यु को चखा Jesus tasted death आपके और मेरे लिए, for you and for me, कि ताकि जब हमारा आखिरी समय आए so that in our last moments, आप और मैं मृत्यु को नहीं चखेंगे। you and I will not taste death. Do you know the death of the sting has been taken away from a believer? आप जानते हैं मृत्यु का डंक एक विश्वासी पर से तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया। देखा आपने जब डंक पड़ता है किसी को? Have you seen when someone is stung? That means when your last day comes, जब आपका आखिरी दिन आता है, you will not even know when you will step into that glory. आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब महिमा में प्रवेश कर जाओगे। Before death could sting you, इससे पहले कि मृत्यु आपको डस सकती, God will call your spirit out of your body. परमेश्वर आपकी आत्मा को शरीर से बाहर बुला लेगा। अब ये प्रभु मैं कब मरा मुझे तो पता ही नहीं चला। You will say, Lord, when did I die? प्रभु I did not कहेगा know. मैं मरा इसलिए तुझे पता नहीं चला, मैं तेरे लिए मरा। Jesus will say, I died for you, that's why you didn't get to know. जो मरने का वो स्टिंग था, जो दर्द था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। The sting of death I took upon myself. Can you imagine people are stoning Stephen? आप कल्पना कर सकते हैं लोग पथराव कर रहे हैं स्टीफनुस पे। वो दर्शन देख रहा है। He's looking at, he's seeing a कह रहा है vision. मैं पिता को और यीशु को उसके बगल में देख। He's saying, I'm seeing the Father and Jesus at his right किसी hand. को पत्थर मार रहे हो आप, If you are throwing stones at someone, the sting of the death has been taken away. मृत्यु का डंक हटा दिया गया है। Amen. Amen. I was hearing a story, मैं कहानी सुन रहा था। a testimony एक गवाही। of a man who was caught up to heaven, एक व्यक्ति जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे and he met Apostle Paul. और वो अपोस्टल पॉल से मिले And Apostle Paul said, और अपोस्टल पॉल ने कहा when they were about to behead me, जब वो मेरा सर कलम करने वाले थे, before they could cut my head, इससे पहले कि वो मेरा सर काट Jesus पाते, appeared in front of me. यीशु मेरे सामने आके And he खड़े said, हुए Paul, come. और कहा पॉल आओ। So he said, me and Jesus was there, और उन्होंने कहा मैं और यीशु खड़े and I थे saw they cutting my body, और मैं देख रहा था कि वो मेरा शरीर काट but रहे I हैं, felt no pain. पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। The sting of death has been taken away. मृत्यु- Oh death, where is your victory, oh death? Where is your victory, oh death? You have been defeated by our Lord forever. मृत्यु का डंक हटा दिया गया है। मृत्यु की जय कहाँ रही? हमारे प्रभु ने उसको हरा दिया हमेशा के लिए। Amen. That's the mystery. ये रहस्य है, That's the mystery. यही वो रहस्य है। So हम जो आज कम्युनियन लेते हैं, So when we take communion जो हम today, प्रभु भोज लेते हैं, when we वो partake in रीति communion, रिवाज की तरह नहीं लेते। we don't do it as a ritual. वो एक सेलिब्रेशन है कि मृत्यु का अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। It is a celebration that death has no more authority or power Why do you over think me. Jesus said, remember my death? Every time, remember my death. Because if you remember my death, death will have no hold over you. क्यों यीशु ने बार बार ये बात कही कि मेरी मृत्यु को याद करना, मेरी मृत्यु को याद करना, क्योंकि जब आप उसकी मृत्यु को याद करोगे, मृत्यु का आप पर कोई जोर नहीं, कोई वश नहीं होगा। Amen.